Good morning students of class 9th. Today I am going to teach you English literature lesson 8 Reach for the top. Okay, part 1 Santosh Yadav. Okay, about the lesson. In a traditional Hindu family, the birth of a made baby is a matter of great rejoice. But the birth of a female baby, thou not considered a curse, but it is not generally welcome. A girl named Santosh is born in such a family where a girl, when she grows 16, is usually married, but Santosh wanted to study. In spite of all obstacles, she keeps reading. An event made an interest in mountaineering, and what a mountaineer she becomes. She scaled Mount Everest. Okay, Mount Everest not once but twice. Okay, before you read, think for a while and make a list of 3 or 5 persons you idolize or admire very much. Idolize or admire very much for their achievements. Your idols may be from any sphere of life: sports, medicine, media, or art and cultural. Your teacher will then discuss your choice with you to find out who the top 5 idols of your class are. Okay, यानी पोइम इस लेसन में बताया गया है कि आप स्पोर्ट्स में रुचि है या किसी भी क्षेत्र में आपकी रुचि है तो आपको अपने अचीव अपना गोल आपको प्राप्त करना चाहिए, पहुंचना चाहिए। इससे क्या होती है, सब जगह प्रशंसा होती है और आपको अपने लक्ष्य को पाना ही आपका मुख्य कर्तव्य होता है। ओके, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में ही सर्वांगीण विकास होता है। दिस लेसन हैज़ बीन written by okay, once wait for a minute. ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें ऑथर कहते हैं, बताते हैं कि द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, thou not considered a curse, was not generally welcome. When her mother was expecting Santosh, a travelling holy man, giving her his blessing, assumed that she wanted a son. But to everyone's surprise, the unborn child's grandmother, who was standing close by, told him that they did not want a son. The holy man was also surprised. Nevertheless, he gave the requested blessing, and as destiny would have it, the blessing seemed to work. Santosh was born the 6th child in a family with 5 sons, a sister to 5 brothers. Okay, she was born in the small village of Jonivas of रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। ओके, यानी इस पैसेज में लेखक कहते हैं कि संसार की एकमात्र स्त्री जो कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी, वह ऐसे समाज में जन्मी थी जहां बेटे के जन्म को वरदान के रूप में जाना जाता था, ठीक है, और बेटी को
एक अभिशाप के रूप में माना जाता था। तथापि आमतौर पर उसका स्वागत नहीं होता था। जब संतोष का जन्म होने को था तो एक आगंतुक यानी पवित्र व्यक्ति यानी साधु महात्मा जो होते हैं वो उनकी माँ को एक वरदान दिया कि विचारते हुए उसे एक बेटे की चाह थी। लेकिन सभी को आश्चर्यचकित करते हुए अजन्मे शिशु की दादी ने, जो कि पास खड़ी हुई थी, उन्होंने बताया कि हमें बेटे की चाह नहीं है। ओके, उन्होंने बताया कि हमें बेटे की चाह नहीं है। वह पवित्र व्यक्ति अर्थात साधु भी आश्चर्यचकित हो गया, तो भी उन्हें प्रेरित वरदान दे दिया उसने, है ना। और कहा जैसा कि नियति में था वरदान फलीभूत होता प्रतीत हुआ। 5 बेटों वाले परिवार में छठे शिशु यानी 5 बेटों वाले परिवार में जो छठे शिशु हुआ, जस्ट ए मिनट, 5 बेटों वाले परिवार में जो छठा शिशु के रूप में 5 भाइयों की बहन संतोष का जन्म हुआ। उसका जन्म हरियाणा के रेवाड़ी जनपद के एक छोटे से गांव जीनेवास में हुआ। ओके, प्लीज टर्न ओवर। ओके, नेक्स्ट पैरा नंबर 2। द गर्ल वाज गिवन द नेम संतोष विच मीन्स कॉन्टेंटमेंट। ओके, यानी संतोष जो नाम है उसका अर्थ है कॉन्टेंटमेंट, यानी अंदर से मन की संतुष्टि। ठीक है, बट संतोष वाज नॉट ऑलवेज कॉन्टेंट विद हर प्लेस इन ए ट्रेडिशन वे ऑफ लाइफ। शी बिगेन लिविंग लाइफ on her own term from the start. Where other girls were traditional Indian dresses, Santosh preferred short. Looking back, she says, now from the very beginning I was quite determined that if I chose a correct and a rational path, the others around me had to change, not me. ओके, यानी क्या हुआ, ये जो सेकंड पैरा है इसमें ऑथर कहते हैं कि इस लड़की को संतोष नाम दिया गया जिसका अर्थ संतोष होता है। ठीक है, लेकिन संतोष जीवन की परंपरागत रीति में अपने स्थान से सदा संतुष्ट नहीं थी। उसने प्रारंभ से ही जीवन को अपनी स्वयं की शर्तों पर जीना आरंभ कर दिया था। ओके, जहाँ दूसरी लड़कियाँ परंपरागत भारतीय परिधान पहनती थी, वहीं संतोष शॉर्ट्स को प्राथमिकता देती थी। अतीत का स्मरण करते हुए अब वह कहती है, बिल्कुल शुरुआत से ही मैं दृढ़ निश्चय थी। यदि मैंने सही तथा तर्कसंगत पथ चुना है तो मेरे आसपास के दूसरों को बदलना है, मुझे नहीं। ओके, ये संतोष के विचार थे। ओके, पैरा नंबर 3। संतोष पेरेंट्स वर affluent landowners who could afford to send their children to the best schools, even to country's capital, New Delhi, which was quite close by. But in line with the prevailing customs in the family, Santosh had to make do with the local village school. So she decided to fight the system in her own quiet way. When the right moment arrived, and the right moment came when she turned 16. At 16, most of the girls in her village used to get married. Okay, Santosh was also under pressure from her parents to do the same. Okay, यानी थर्ड पैरा में लेखक कहते हैं कि संतोष के माता पिता धनी जमींदार थे जो अपने बच्चों का अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजा जाना वहन कर सकते थे, यानी खर्चा उठा सकते थे। यहाँ तक कि देश की राजधानी नई दिल्ली के जो कि बहुत नज़दीक थी, वहाँ के परिवार की प्रचलित परंपरा के अनुसार संतोष को गांव के एक स्थानीय विद्यालय से काम चलाना पड़ा। ओके, और अर्थात वहाँ जाना पड़ा। इसलिए उसने सही समय आने पर अपने शांत तरीके से व्यवस्था से लड़ने का फैसला किया। उचित समय आया जब वह 16 वर्ष की हो गई। ठीक है, संतोष जब 16 वर्ष की हो गई, 16 वर्ष की अवस्था में उसके गांव की अधिकतर लड़कियों का विवाह हो जाया करता था। संतोष पर भी ऐसा ही करने का अपने माता पिता का दबाव था। संतोष के माता पिता भी चाहते थे
कि संतोष भी शादी करके अपना घर बसाए, और वो उस पर दबाव डालने लगे। अ मैरिज, फोर्थ स्टैंजा, अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वाज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। शी threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. She left home and got herself enrolled in a school in Delhi. When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part-time to pay her school fees. Okay. Her parents then agreed to pay for her education. Okay, में क्या हुआ, फोर्थ पैरा में लेखक कहते हैं कि इतनी जल्दी विवाह करना उसके मन में अंतिम बात थी, यानी कि उनको शादी ब्याह में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने अपने माता पिता को चेतावनी दी कि जब तक मुझे उच्च शिक्षा नहीं मिल जाती, जब तक मैं अच्छे से अपने जितना चाहती हूँ उतना नहीं पढ़ लेती, तब तक मैं विवाह नहीं करूँगी। उसने घर छोड़ दिया, दिल्ली के एक स्कूल में अपना पंजीकरण करा लिया। जब उसके माता पिता ने उसकी शिक्षा का खर्च उठाने से मना कर दिया, तो उसने उन्हें विनम्रतापूर्वक पार्ट टाइम काम करने का, यानी पार्ट टाइम जॉब करने का, धन कमाने का अपनी योजना की सूची सुना दी। ठीक है, उसके माता पिता अपनी मतलब पार्ट टाइम जॉब करने का फैसला सुना दिया और काम करके धन कमाने की अपनी योजना बता दी। उसके माता पिता तब उसकी शिक्षा का व्यय वहन करने को राजी हो गए। ओके, 5 स्टैंजा 5, विशिंग ऑलवेज टू स्टडी a bit more and with her parents slowly getting using to her urge for more education, Santosh passed the high school examination and went to Jaipur. She joined Maharani College and got a room in Kasturba Hostel. Santosh remembers Kasturba Hostel faced the Aravalli Hills. Okay, I used to watch villagers from my room going up the hill and suddenly vanishing after a while. One day I decided to check it out myself. I found nobody except a few mountaineers. I asked if I could join them. To my pleasant surprise, they answered in the affirmative and motivated me to take the climbing. Okay, वहाँ पे क्या हुआ, ये जो 5th पैरा है इसमें लेखक कहते हैं, हमेशा कुछ और अधिक अध्ययन करने की इच्छा, यानी मैं हमेशा कुछ न कुछ मोर, यानी जैसे मन चाहे मोर, हमेशा एक्स्ट्रा कुछ न कुछ चाहती थी अध्ययन के लिए। अध्ययन करने की इच्छा रखते हुए अपने माता पिता के धीरे धीरे और अधिक शिक्षा पाने की लालसा के प्रति अभ्यास होने के साथ संतोष ने हाई स्कूल की परीक्षा पास की और जयपुर चली गई। ठीक है, जयपुर में कहाँ पे गई, जयपुर चली गई। उसने महारानी कॉलेज में प्रवेश लिया और कस्तूरबा छात्रावास में एक कक्ष ले लिया। संतोष स्मरण करती हैं और कहती हैं कि कस्तूरबा छात्रावास अरावली की पहाड़ियों के सामने था। मैं गांव वालों को अपने कक्ष से पहाड़ी पर जाते तथा अचानक कुछ समय के बाद लुप्त होते हुए देखा करती थी। एक दिन मैंने खुद उसकी जांच करने का निर्णय किया। मुझे सिवाय कुछ पर्वतारोहियों के अलावा कुछ नहीं दिखा। मैंने उनसे पूछा, क्या मैं सम्मिलित हो सकती हूँ? मुझे सुखद आश्चर्य हुआ। उन्होंने सकारात्मकता में उत्तर दिया और मुझे चढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। ओके, सिक्स्थ पैरा, Then there was no looking back for this determined young girl. She saved money and enrolled in a course at Uttarakashi's Nehru Institute of Mountaineering. My college semester in Jaipur was
to end in April, but it ended on the 19th of May, and I was supposed to be in Uttarkashi on the 21st. So I did not go back home. Instead, I headed straight for the training. I had to write a letter of apology to my father, without whose permission I had got myself enrolled at Uttarkashi. ओके, यानी 6 पैरा में पोइट कहते हैं, सिक्स पैरा में लेखक कहते हैं कि तब इस दृढ़ निश्चय युवती ने फिर पलटकर पीछे नहीं देखा। उसने इतना धन बचाया और उस अपना पंजीकरण उत्तराकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में एक पाठ्यक्रम में कराया। मेरा जयपुर का कॉलेज का सेमेस्टर अप्रैल में समाप्त होने वाला था, लेकिन यह 19 मई को समाप्त हो गया। मुझे उत्तराकाशी 21 तारीख को जाना था, इसलिए मैं घर वापस नहीं गई। इसके स्थान पर मैं सीधे प्रशिक्षण के लिए चली गई। मुझे अपने पिताजी को क्षमा याचना के लिए पत्र लिखना पड़ा, जिनकी अनुमति के बिना मैंने अपना पंजीकरण उत्तराकाशी में करा लिया था। ओके, 7th स्टैंजा। Thereafter संतोष went on an expedition every year. Her climbing skills matured rapidly. Also, she developed a remarkable resistance to cold and the altitude, and equipped with an iron will, physical endurance, and an amazing mental toughness. She proved herself repeatedly. The combination of her hard work and sincerity came in 1992, just 4 years after she had shyly asked Aravalli mountaineers if she could join them at barely 20 years of age. ठीक है, संतोष यादव scaled Mount Everest, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat. If her climbing skills, physical fitness, and mental strength impressed her seniors, her concern for others and desire to work together with them found her a special place in the hearts of fellow climbers. देखिए, आयरन विल, फिजिकल एंडोरेंस एंड मेंटल टफनेस करेक्टराइज संतोष यादव। ओके, यानी प्लीज टर्न ओवर। इसमें जो ऑथर है वो बताते हैं कि 7th स्टैंजा में ऑथर बताते हैं कि इसके बाद संतोष प्रतिवर्ष एक अभियान पर गई, और वहाँ पे जाने के बाद उसका पर्वतारोहण का कौशल तीव्रता से परिपक्व होता गया। उसने ठंड व ऊंचाई के प्रति भी उल्लेखनीय प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली थी। दृढ़ इच्छा शक्ति यानी स्ट्रॉन्ग विल पावर, ओके, दृढ़ इच्छा शक्ति, शारीरिक सहनशीलता तथा आश्चर्यजनक मानसिक दृढ़ता से सुसज्जित होकर उसने स्वयं को बार बार प्रमाणित किया। उसके परिश्रम का तथा ईमानदारी का परिणाम 1992 में उसके द्वारा अरावली के पर्वतारोहियों से शर्माते हुए यह पूछने के, यानी उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या बताया, देखिए उन्होंने बताया कि 4 वर्ष के बाद, उन्होंने बताया कि 4 वर्ष के बाद, यानी ये जो संतोष यादव हैं इन्होंने बताया कि 4 वर्ष बाद आया, क्या मैं आपके साथ आ सकती हूँ। कठिनाई से केवल 20 वर्ष की अवस्था में संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की और इस साहसिक कार्य को करने वाली संसार की पहली महिला बनी। यदि उसकी शारीरिक क्षमता व मानसिक शक्ति ने उसके वरिष्ठों का प्रभाव किया तो उसके दूसरों के प्रति चिंता भाव और उनके साथ मिलकर काम करने की चाह ने सह पर्वतारोहियों के हृदय में उसके लिए विशिष्ट स्थान बनाया। ओके, प्लीज टर्न ओवर। ओके, यानी 8th स्टैंजा। During the 1992 Everest mission, Santosh Yadav provided special care to the
climber who lay dying at the south pole. She was unfortunately unsuccessful in saving him. However, she managed to save another climber, Mohan Singh, who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him. Okay, यानी 8th स्टैंजा में लेखक कहते हैं कि सन 1992 ईस्वी के एवरेस्ट मिशन के दौरान संतोष यादव ने एक आरोही जो कि साउथ पोल पर मृत प्राय पड़े हुए थे, उनकी विशेष देखभाल की। ठीक है, वह दुर्भाग्य से उसे बचाने में असफल रही, तो भी उसने मोहन सिंह नाम के दूसरे आरोही जिसके साथ भी वही हुआ होता यदि उसने संतोष ने अपनी ऑक्सीजन उसके साथ साझा न की होती, उनको बचा लिया। यानी माउंटेन पर चढ़ते हैं तो ऑक्सीजन साथ लेके चढ़ते हैं। ओके, उसकी ऑक्सीजन खत्म हो गई तो संतोष ने उसकी हेल्प की थी। ओके, पैराग्राफ 9, विद इन 12 months संतोष फाउंड herself a member of an Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them. She then scaled the Everest a second time, thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice, and securing for herself and India a unique place in the annal of mountaineering. In recognition of her achievements, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honors, the पद्म श्री। ओके, यानी 9th स्टैंजा में बताया है ऑथर ने कि 12 महीनों के अंदर संतोष इंडो नेपाली महिलाओं का अभियान, जिसने उसे अपने साथ आने का न्योता दिया था, की सदस्य बन गईं। तब उन्होंने दूसरी बार एवरेस्ट पर विजय पाई। इस प्रकार एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली एकमात्र महिला बनने का कीर्तिमान स्थापित किया। ओके, उसके बाद और पर्वतारोहण के वृत्तांत यानी इतिहास में अपने तथा भारत के लिए एक अद्वितीय स्थान प्राप्त किया। उसकी उपलब्धियों के सम्मान में भारत सरकार ने राष्ट्र के एक उच्चतम सम्मान पद्मश्री से विभूषित किया। ओके, 10 देखिए, लास्ट स्टेंजा है। प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। डिस्क्राइब हर फीलिंग्स व्हेन शी वाज literally on top of the world. Santosh has said it took some time for the enormity of the moment to sink in. Then I unfurled and just a minute, the Indian tricolor and held is aloft on the roof of the world. The feeling is indescribable. The Indian flag was flying on the top of the world. It was truly a spiritual moment. I felt proud as an Indian, also a fervent environmentalist. Santosh collected and brought down 500 kilograms of garbage from the Himalayas. Okay, यानी इस पैरा में लास्ट पैराग्राफ में लेखक ये बता रहे हैं कि उन्होंने बताया है कि जब वह सचमुच दुनिया की चोटी पर थी, यानी सबसे ऊपर चोटी पर थी, तो अपनी भावनाओं का वर्णन कर रही है। और उन्होंने बताया कि संतोष ने कहा कि इस क्षण की महत्ता को समझने में कुछ समय लगा। ओके, तब मैंने भारत का तिरंगा ऊपर चोटी पर पहुंचकर मैंने भारत के तिरंगे झंडे को फहराया और इसे संसार की छत पर ऊंचा उठाई रखा। यह अनुभूति अवर्णनीय है। ओके, भारतीय ध्वज संसार की चोटी पर लहरा रहा था। ओके, यह वस्तुतः अलौकिक क्षण था। मुझे भारतीय होने पर भी गर्व हुआ। साथ ही साथ एक उत्साही पर्यावरणविद संतोष ने
500 किलोग्राम कूड़ा कचरा हिमालय से एकत्र किया और उसे नीचे ले आई। ओके स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? आई होप you enjoyed my class. Thank you students. That's it for today. All the best.